Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home. Today is 4th of May 2021. Day is Tuesday, and you are having your biology lesson with me. When you were coming in the school, we were learning about the unit number 3. You have given me the test, and I have also received the assignments and the tests that you have submitted on the Google Classroom. So in your today's lesson, we will be starting a new chapter, that is unit number 4, about cells and tissues. You have already learned about the cells and tissue in unit number 1. So who is going to tell me like what are cells? Very well done, Arham. Cells are the basic unit of the life. कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ है वो सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है. आइदर इट इज़ अ बैक्टीरिया, इट्स अ वायरस और इट्स अ ह्यूमन बीइंग. all the living organism has their life starting with a cell. And tissues are when the similar type of cells are working together and organize themselves in groups or subgroups. This is what we call the tissues. I repeat, I said cell is the basic unit of any living organism's life. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है. जब सिमिलर टाइप के सेल्स कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ एज ग्रुप, दिस इज व्हाट वी कॉल टिश्यू. So we are clear with the name of the chapter, cells and tissue. Obviously, before starting the chapter, you should know that what we are going to learn, what the chapter is explaining all about. So this chapter is given, this unit is given on page number is 52 of your biology book. And in your biology book, they are starting with the microscope. Obviously, it's not possible for me to show you the microscope on the video. So we are skipping the topic of microscope for now. When you will be coming in the school, we will do the experiment and I will show the microscope that we are having in our school. So this topic we are skipping for now, but we'll do it when you will be in the school, inshallah. But let me give you the overview. Like microscope is something you all know that we use to see the smallest thing that our eyes are not able to see. हम वो चीज़ें माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो हमारी आईज से हमें नज़र नहीं आती. Our naked eyes don't have the ability to see those microscopic things. So we are having the two types of microscope, electron microscope and compound microscope, okay? और यू मे से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो नॉर्मल चीज़ों को देखती है. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो बिल्कुल जो माइनर सी डिटेल होती है उसको भी शो करती है. एंड इट्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू टू सी द थिंग्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So this was about the types of microscope, electron and light microscope. We will be starting our topic from the cells, that is given on page number 57. On page number 57 you are having a topic, cellular structures and functions. In this topic of cellular structure and function, you will be learning about the detailed structure of a cell and what are the functions that are performed by the different parts of the cell. किसी भी सेल के अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ व्हाट यू विल बी लर्निंग इन दिस टॉपिक, ओके. सो यू ऑल नो अबाउट द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. डू यू नो दैट और नॉट? Of course you do. Eukaryotic cells are those that are having the true nucleus in them, and prokaryotic cells are those that are not having the true nucleus. उनमें false nucleus होता है. False nucleus का मतलब है कि nucleus exactly तो नहीं है, but nucleus की तरह के सारे काम परफॉर्म हो रहे होते हैं, right? So जितने भी कोई सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो सेल ऑर्गेनली से मिलकर बने होते हैं. अब ऑर्गेनलीज क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ, ठीक है. अब सेल जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनलीज के साथ बना होता है. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑर्गेनलीज हम कहते हैं
सेल से भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको। जब ऑर्गेनेलीज मिल जाती हैं दे मेक अ सेल, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, लाइक उनका कोई सेपरेटली रोल नहीं है, बट जब वो सेल्स के अंदर होती हैं दे आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, उनका सेल को मेकअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब as I am telling to you that organelles make the cell and cell is having its different parts. जैसे आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में क्लास 7, 8 और ऑल्सो इन क्लास 6 you have studied about the plant cell and animal cell. Do you remember something about those cells, plants and animal cell? Let me just draw it on the board and then I'll ask a few questions from you. This is how the plant cell and animal cell looks like. Now see, they are having different kind of structure inside them. आपको कुछ large elongated नज़र आ रही है, कुछ आपको circular नज़र आ रही है. You are able to see different kind of dots that I have put it in the diagrams. Each and everything is having its own specific function. ये ऐसे ही नहीं होता सेल में, हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है और everything has its own name, और हर चीज़ का, हर पार्ट का कोई अपना नाम होता है। अब आप देखो, ये कलेक्टिवली एक प्लांट सेल है, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं लाइक दिस वन, these dots, these all are what we say the organelles. इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। These organelles combine together and make a cell, जैसे एक सेल बनता है। अब हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। हम यही सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले इसको लेबल करते हैं एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। The outer layer of the cell, the outermost layer of the plant cell is called cell wall. Plant cell, this one is the plant cell. इसकी जो सबसे outer layer मैंने बनाई है इसको हम cell wall कहते हैं। Same, the outermost layer in the animal cell is called cell membrane. प्लांट्स की आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, और जो एनिमल्स की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर मोस्ट जो वॉल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। I repeat what I said. The outermost layer of a plant cell is called cell wall and outermost layer of an animal cell is called cell membrane. अभी हम इसको साथ साथ लेबलिंग करते हैं और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। Like as I have introduced to you, the outermost layer of plant and animal is called cell wall and cell membrane. सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में नो हाउ लेते हैं, लाइक व्हाट दे एक्चुअली डू इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। उसके बाद हम साथ साथ इन प्लांट और एनिमल सेल्स को लेबल करते जाएंगे एंड द थिंग दैट वी विल लेबल, वी विल गेट टू नो अबाउट इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल। हम प्लांट सेल में सेल वॉल को डिटेल से स्टडी करते हैं। Okay, let me tell you one very important and interesting thing, that not all the living organisms are having the cell wall inside them. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जस्ट यू हैव सीन, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी तो मैंने प्लांट के साथ तो लिखा कि सेल वॉल है, बट मैंने एनिमल्स के साथ कौन सी सेल के बारे में लिखा था? आई हैव रिटन सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सो what you have to keep in your mind that cell wall is not present in all the living organism like in animals and in protist. cell wall जो है वो animals और protist में present नहीं होती है, okay? Okay, I have written it on the board that it is not present in all the living organism like animals and protist. Second thing about the cell wall is it's a non-living thing. ये एक नॉन लिविंग चीज़ है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को। वन मोर थिंग, ग्रेड 9 यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जब हम सेल की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। व्हाट आई सेड दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो cell wall is a non-living thing and it is a very important component, very important part of the cell.
It is located, it is present, where it is present, can you spot it? It is present on the outermost side of the cell. अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, outermost side of the cell, or you can also say it is present on the outermost side of the plasma membrane. अब आपको पता चला है कि plasma membrane किसे कहते हैं? Ipsham, can you tell like what is a plasma membrane? Okay, one more thing, when I am calling your name, you are supposed to give me the answer. How you will be giving the answer? When you are watching the video, you are able to write a comment on the video link. So whatever question I am asking, you are supposed to give the answer. So I was asking from Ipsham that what is a plasma membrane? Very well done, Ipsham. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल. वो प्लांट सेल की भी हो सकती है, एनिमल सेल की भी हो सकती है. उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कि सेल वॉल प्लांट सेल में है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में है. तो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट क्या बताया? आई सेड दैट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग and it is a very important component or part of a cell. It is located or present on outside of plasma membrane. Okay, now let's talk about its function. अब हमने इसकी लोकेशन के बारे में, how does it look और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो बात कर ली. Let's talk about its function. इसका रोल क्या है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है? It provides support. It also provides the shape, protection and strength to all the living thing that is present inside the cell. ये itself तो नॉन लिविंग है, लेकिन सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम ऑल द आउटर थिंग्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. ओके, so the third point will be its function, and in its function it is giving or providing the shape, strength, protection and support to all the inner matter that is present inside the cell. आप देख रहे हो यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी हैं. The names that I am calling, these all things that are the names that I am saying to you, ये सब उन चीज़ों के जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है. मैंने उनको लेबल नहीं किया बिकॉज वी डिसाइडेड कि हम जिस चीज़ को लेबल करेंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी हम सिर्फ सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो जितना भी इंटरनल मैटर है इसको प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, ठीक है? सो दिस इज इट्स फंक्शन. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि प्लांट्स के अंदर जितना भी मटेरियल होता है इनसाइड, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इसको कलेक्टिवली इकट्ठा हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. व्हाट वी से, वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म. I am saying to you that all the internal matter that is present inside the cell, इसको हम collectively protoplasm कहते हैं. ये छोटी छोटी सी terms हैं जो आपने अपने mind में रखनी है, ठीक है? Okay, the next point related to the cell wall is as it is present in plant cell. तो प्लांट सेल में इसके अंदर ये डिफरेंट केमिकल से मिलके बनी होती है सेल वॉल, ठीक है? जो इसकी सबसे पहली वाली लेयर होती है सेल वॉल की, उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं. व्हाट वी से, द फर्स्ट लेयर और फर्स्ट वॉल ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल. अब सेल वॉल तो है, उसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करने लगे हैं. इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और उन कंपोजिशन में जो इसकी सबसे पहली लेयर होगी सेल वॉल की उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं. ओके, दैट प्राइमरी वॉल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज़ अ केमिकल जिससे सेल वॉल बनी होती है. उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है, जैसे आपने जाइलम और फ्लोएम सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है. डू यू रिमेंबर अबाउट द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स? Xylem cells are helpful in transporting the water from one place to other, और phloem cell जो है वो food transport करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है? अब जब हम cell wall की internal composition के बारे में बात कर रहे हैं, I was saying to you that the cell wall is having different chemicals inside it. जो फर्स्ट लेयर होती है सेल वॉल की उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, एंड दैट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज़ अ केमिकल. इसके बाद प्राइमरी वॉल के बाद जो सेकेंडरी वॉल होती है उसकी भी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है जो लिग्निन से बनी हुई है. लिग्निन इज़ ऑल्सो अ केमिकल, LIGNIN, लिग्निन. सो
here we have seen the composition of a cell wall. I have explained to you that cell wall is having different kind of chemical. जो first layer होती है cell wall की, that is what we are calling primary wall. It is made of cellulose, and the secondary layer is called secondary wall, that is made of lignin. ठीक है, अब इस primary और secondary wall के अंदर छोटे छोटे से pores होते हैं, holes होते हैं, सुराख होते हैं. Why they are present there? क्योंकि उनका कनेक्शन साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म के साथ हो जाए. अभी मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, दैट द इंटरनल मटेरियल इनसाइड द सेल. क्यों ये कनेक्शन होता है? ताकि जो भी कोई ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होना है, फूड एक्सचेंज का प्रोसेस होना है, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है, वो हो सके. ठीक है, तो जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के अंदर, उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा. आई हैव रिटन अबाउट इट ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा आर द स्मॉल होल्स दैट आर स्मॉल होल्स और स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द secondary or primary wall. Okay, now let's talk. You all know that fungi is also a plant like. fungi भी plants की तरह का होता है. ठीक है, so fungi में भी cell wall होती है because it is like plant, so it's also having a cell wall. But फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती है. यहाँ पे आपने देखा था कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन. बट फंजाई ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ प्लांट, बट डिफरेंस क्या है कि उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई. अगर सेलुलोज से नहीं बनी हुई तो देन व्हाट कुड बी द केमिकल? द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ अ केमिकल कॉल्ड काइटिन. उसको हम काइटिन कहते हैं. So the cell wall of fungi is made of chitin. Chitin is a chemical. Then we are having the prokaryotes. Prokaryotes are what? That are not having the exact nucleus in them. प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है. पेप्टाइडोग्लाइकेन इज ऑल्सो अ केमिकल. ठीक है, अब पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड और शुगर से. ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल वॉल. आपने देखा है जैसे हम पहले सिर्फ लेबल कर देते थे सेल वॉल के बारे में और हमें सिर्फ ये पता होता था इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सेल. नाउ सी हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव रिटन अबाउट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. There are 9 points that are about the cell wall that they have explained to you on your book. So let's just revise it once again. And while we are doing the revision, I'll be asking few questions and you are supposed to give the answer. Okay, so cell wall is present in which cell? Plant cell or animal cell? Good, it's present in plant cell. So we have studied that it's not present on all the type of living organism. ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या लाइक प्लांट्स में होती है या प्लांट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. सो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था दैट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट. एनिमल्स और प्रोटिस्ट में नहीं होती. ठीक है, देन इन सेकेंड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स कंपोजिशन, कि इसकी मेकिंग क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है. वी हैव स्टडीड दैट इट्स अ नॉन लिविंग. खुद तो नॉन लिविंग है लेकिन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. और मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड हम प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप बताते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में है उसको सेल वॉल कहते हैं और जो एनिमल्स में है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. राइट, ओके. ये कंपोजिशन नहीं थी, ये उसकी लोकेशन थी कि वो कहाँ पे लोकेटेड है. ओके, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है. सेल वॉल प्रोवाइड द शेप, strength and protection to the cell. It also provides the support to internal things that are present inside the cell. सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. दिस वाज द थर्ड पॉइंट. और थर्ड पॉइंट है इसकी कंपोजिशन के बारे में. देन वी आर हैविंग द प्राइमरी वॉल दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज, secondary wall that is made of lignin, plasmodesmata
Plasmodesmata are the small pores that are present on primary and secondary wall. प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स पे जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं. वाई द पोर्स आर प्रेजेंट? सो दैट दे कैन बी लिंक्ड विद द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के साथ वो लिंक्ड कर सकें. ठीक है. देन वी हैव स्टडीड बिकॉज फंजाई इज़ लाइक अ प्लांट, तो फंजाई की भी सेल वॉल होगी. फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई है. ठीक है. काइटिन इज़ अ केमिकल. देन वी हैव स्टडीड द प्रोकैरियोट्स, दे ऑल्सो रिजेंबल्स लाइक अ प्लांट. सम प्रोकैरियोट्स रिजेंबल्स लाइक अ प्लांट, और अगर जो रिजेंबल करते हैं प्लांट से, उनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन इज़ अ केमिकल. पेप्टाइडोग्लाइकेन जो केमिकल है उसकी कंपोजिशन लिखी हुई है अमाइनो एसिड और शुगर को अगर आप मिलाओ तो दैट विल मेक अ पेप्टाइडोग्लाइकेन. और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल वॉल. सो Hassan, you have to tell me like what is plasmodesmata. Maham, you have to give the answer that primary and secondary walls are made of which chemicals. Okay. Then my next question is from Muhammad. Muhammad, you have to explain the composition of पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या कंपोजिशन होती है? ठीक है. इट्स अ केमिकल. आपने बताना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है. सनान, माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ दैट यू हैव टू टेल व्हाट इज़ अ प्रोटोप्लाज्म. हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, आपने ये बताना है. अर्श एंड हादिया, यू बोथ आर सपोज टू गिव द आंसर लाइक व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कह रहे हैं? ठीक है. हु इज़ लेफ्ट? Yes, Shiza, you have to tell what is the location of cell wall in a plant cell. So you all have to give the answer of this question. Moiz, you also have to give the answer of one question. You will tell to your class fellows by commenting on the video link that what are the what are the 4 types of chemicals we have studied in cell wall. जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने 4 केमिकल्स के बारे में पढ़ा है. आपने उन केमिकल्स के नेम राइट करने हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको इसके सब पॉइंट्स के बारे में बता दूँ. वाई आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड बिकॉज अगर आप पॉइंट्स के थ्रू याद करोगे इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू और आपको कभी भी ये चीज़ें भूलेंगी नहीं. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने भी अपनी बायोलॉजी की नोटबुक पर यहाँ पे किसी रफ रजिस्टर पर पॉइंट्स नोट करने हैं और आपने इसी तरह उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है. ठीक है. एंड यू हैव टू राइट दोज पॉइंट्स ऑन द रफ नोटबुक और योर बायोलॉजी नोटबुक वेयर एवर यू वॉन्ट. And you have to memorize all the points because in your next class when I'll be having the Zoom lesson I will be asking the question from you. फिर हम next topic start करेंगे. ठीक है. So this is all about today. In our today's biology lesson we have talked about the cellular structure and function topic. In that topic we have studied about the detail, function, structure and location of cell wall. So take good care of yourself, have a good time. If you are finding difficulty in gaining the concept, you are free to approach me on the WhatsApp. I will explain to you and you can also comment on the video link. So take good care of yourself. Allah Hafiz.